Okay ji, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear students. This is your lesson number 1 of week 1 from chapter number 2, Support and Movement, book page number 36. So the contents of today's lesson is objectives, skeletal system, division of skeletal system, axial skeleton, division of axial skeleton, then appendicular skeleton, then division of appendicular skeleton, then recapitulation, and then assignment. So student, after completing this lesson, you will able to solve the MCQs, and you will able to describe the different components of the human skeleton. So first of all, students, what do you mean by skeletal system? What do you mean by skeletal system? Skeletal system is basically, as we know, a framework, the framework of the body that support our body internal organs, that support our body tissues, that protect our body from any injury. That type of framework of the body is called skeletal system. So in an adult human body, 206 bones are present, but the babies are born with about 300 bones. Then उनके 300 बोन्स आगे फिर जब जैसे ही वो अडल्ट में कन्वर्ट होते हैं तो वो 200 बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। एंड एज हमें ये भी पता है कि बेबीज की जो बोन्स होते हैं वो बहुत सारी सॉफ्ट बोन्स हैं, तो जॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा उनमें होते हैं, लेकिन जैसे ही वो अडल्ट बॉडी में कन्वर्ट होती जाती हैं तो वो 206 हो जाती हैं। सो बेसिकली द स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 डिविजन्स। यहाँ पर कलर से भी मेंशन है, एक आपको नज़र आ रहा है ब्लू कलर, एक आपको पर्पल कलर नज़र आ रहा है। तो ब्लू वन इज कॉल्ड एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन को एक्सियल इसलिए कहते हैं क्योंकि इट इज प्रेजेंट इन द एक्सिस ऑफ द बॉडी। एंड द एपेंडिकुलर स्केलेटन, other than axial skeleton, all the skeleton is called appendicular skeleton. So these are the major division of the skeletal system. And what about the parts of the skeletal system? So we have 4 different parts: bones, joints, cartilage and ligaments. तो skeletal system जो एक framework है वो इन 4 components से मिलके बना है, bone से मिलके बना है। The junction between the 2 bone is called joints, and we have cartilage as well, which is called soft bone, and we have ligaments as well, जो कि आपके muscles को bones के साथ connect करता है. So these are the parts of the skeletal system. First of all, we will discuss what is axial skeleton. So basically, axial skeletal consists of skull, vertebral column, ribs, and sternum. So together the bones forming these structure constitute the central bony core of the body, the axis. That's why इसे axial skeleton कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसने central body core बनाया हुआ है। ठीक है। That's why it is called the axial skeleton. Look at the diagram. The skull, ये पूरा axial skeleton है। This is the skull, this is the ribs, and the flat bone is called sternum, जिसे chest bone भी कहा जाता है। और देन आपके पास आ रहा है वर्टिब्रल कॉलम। जितने भी पेक्टोरल गर्डल है, पेल्विक गर्डल है, पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल जो है वो आपके पास आ जाता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। फर्स्ट ऑफ ऑल स्कल। स्कल जो है वो आपका वर्टिब्रल कॉलम्स के थ्रू आपकी बॉडी से अटैच है। सो द होल स्कल कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, क्रेनियम जैसे ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं, एंड द फेस। First of all, cranium. Cranium is basically the part of the skull, right? जिसे आप कहते हैं ब्रेन बॉक्स। क्रेनियम कितनी बोन से मिलके बना है? क्रेनियम 8 बोन से मिलके बना है। ये सारी चीजें आपसे एमसीक्यूज में पूछ ली जाती हैं, और अब तो 50% एमसीक्यूज है, तो आपने इन सब पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। ये स्लाइड में मैं आपसे शेयर करूंगी, आप इसमें से भी नोट कर सकते हैं, और अभी ऑन द स्पॉट भी आप नोट कर सकते हैं। सो क्रेनियम कंसिस्ट ऑफ 8 बोन्स। अब जो वो 8 बोन्स हैं वो डिफरेंट शेप्स की हैं। सम आर फ्लैट, सम आर इरेगुलर, एंड सम आर मैच्योर बोन्स। लेकिन ये जो इतनी सारी 8 बोन्स हैं ये एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हैं विद द हेल्प ऑफ, अगेन अटैच हैं विद द हेल्प ऑफ ज्वाइंट, एंड द ज्वाइंट आर इमूवेबल। तो जब हम ज्वाइंट्स की हमने कॉलेज में भी डिस्कशन की थी कि ज्वाइंट्स की जो टाइप्स हैं वो होती है मूवेबल, इमूवेबल एंड स्लाइटली मूवेबल। तो इमूवेबल जो स्कल में आपके जॉइंट्स मौजूद हैं, क्योंकि 8 बोन्स हैं वो भी जाहिर सी बात है अटैच हैं, तो वो इमूवेबल है। अच्छा, अब द बोन्स ऑफ द क्रेनियम हैव न्यूमरस परफोरेशन। परफोरेशन मतलब छोटे छोटे पोर्स मौजूद हैं
जिनमें से नर्व्स, ब्लड और लिम्फ वेसल्स पास होती हैं। अब देखें, बिल्कुल कवर अगर होगी बोन तो उसमें से पासिस तो नहीं हो सकेगा ना, तो बोन्स के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनसे आपके नर्व्स, ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स जो है वो पास आउट होती हैं। ये देख ली, ये 8 बोन्स हैं। सबसे पहला आपके पास जो माथे का है, दैट इज कॉल्ड फ्रंटल, एक बोन। फिर आपके पास आंख के करीब पीछे की साइड पे सेफेनॉइड, देन आपकी आईज, इथेनॉइड, इथामॉइड, देन ऊपर की बात पैराइटल, देन एयर रीजन टेम्पोरल, एंड देन द लोअर वन इज कॉल्ड ऑसिपिटल। अब ये बेसिकली बोन्स तो आपके उसमें नहीं है, मेंशन नहीं है टेक्स्ट बुक में, लेकिन आप अगर देखें तो इससे ये रिलेट करता है टॉपिक से, दैट्स व्हाई मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। तो कौन कौन सी बोन की? फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, सेफेनॉइड, इथामॉइड। ठीक है, ऐसे इसको याद करेंगे ना तो बड़ी करी जल्दी याद हो जाएगा। तो ये सारी एक एक मौजूद हैं, सिर्फ टेम्पोरल 2 मौजूद हैं क्योंकि एक कान के इधर होती है, दूसरे कान के होती है, तो टोटल मिला के 8 बोन्स मौजूद है। देन फेस, फेस की हम बात करते हैं तो फेस यानी कि ऊपर क्रेनियम की हमने बात कर ली है, देन वी हैव अ फेस। फेस कंसिस्ट ऑफ नेजल बोन, नोज की जो हड्डी होती है दैट इज कॉल्ड नेजल, टू नेजल, देन लैक्रिमल जो आईज के कोने पे जो है, देन आपके अगेन नोज के साइड में इंफीरियर नेजल कॉक्लिया, देन चीक्स जाइगोमैटिक, देन अगेन एक नोज का इंफीरियर नेजल, दूसरे का वॉर्मर कहलाता है, ऊपर का मैक्सिला, नीचे का मैंडिबल, एंड देन पैलेटाइन। ठीक है, अगेन वही बात कि ये तो आपके कोर्स से रिलेट टेक्स्ट बुक में इंक्लूड नहीं है, बट आपको अगर रिलेटेड चीजें पता चल जाए तो उसमें कोई बुरा नहीं होगा। ठीक है, नेजल, लैक्रिमल, इंफीरियर, मैक्सिला, मैंडिबल, वॉर्मर, जाइगोमैटिक, पैलेटाइन। एटलीस्ट अगर आपको सारी नहीं पता हो तो नेजल का पता होना चाहिए, मैक्सिला, मैंडिबल का पता होना चाहिए, वॉर्मर का पता होना चाहिए, और जाइगोमैटिक जो चीक्स हैं इन बोन्स का पता होना चाहिए। Then the vertebral column, the last part of the axial skeleton. The vertebral column, the spinal cord is protected in a hollow spine backbone that are called vertebral column. And as we know, there are 33 vertebral column, but after fusion 26 अरेंज है, और ये कर्व्ड लाइन में अरेंज है, और हर ये जो 26 बोन्स है इनके भी दरमियान में डिस्क मौजूद है जिसे आप कहते हैं कार्टिलिजिनर डिस्क, जो कि ग्राइंड होने से बचाते हैं। भाई अगर एक दो बोन एक साथ अटैच हैं जॉइंट के बगैर तो वो तो घिस जाएंगी, तो उन बोन्स के एंड में कार्टिलेज मौजूद होता है डिस्क की फॉर्म में। जैसे डिस्क आपको पता है ना, सराउंड शेप, इसकी फॉर्म में मौजूद होता है, जो कि ये जो बोन्स हैं, दो बोन, ताकि आपस में ग्राइंड ना हो। देखिए जी, इस तरीके से ये टोटल 26 होती हैं। 24 जो है वो आपके पास मूवेबल इरेगुलर बोन है, देन सैक्रम एक होती है, एंड देन कॉकस। तो 24, 25 और 26। सैक्रम कितने बोन से मिलके बनी है? सैक्रम मिलके बनी है 5 बोन से। 5 बोन फ्यूज्ड हो गई तो सैक्रम बनी, और 4 बोन फ्यूज्ड हो गई तो कॉकेक्स बनी। ये भी आपने, इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। देन आपको पता है, अगर हम इसे उसको अगेंस्ट अगर हम रीजन्स के में डिवाइड करें तो ये जो आपके नेक रीजन है उसे आप कहते हैं सर्वाइकल, 7 बोन्स, देन थोरेक्स रीजन 12 थोरेसिक, एंड द 5 लुम्बर रीजन, राइट। तो ये भी इस तरीके से। अब लुम्बर रीजन के बाद सैक्रम आता है, एंड देन उसके बाद कॉकेक्स आता है। तो ये मिला के आपके पास हो जाती है 24, और अगर आप इन 5 और 4 को भी गिनेंगे तो आपके पास हो जाएंगी 33 बोन्स। ये देखिए, ये दिस इज अ सर्वाइकल, थोरेसिक, लुम्बर, सैक्रल एंड कॉकेक्स बोन, and it is the intervertebral disc which is made up of cartilage, ताकि ग्राइंड या स्लाइड होने से बचे। देन हम एक्सियल स्केलेटन की रिब्स की बात करते हैं। द ह्यूमन रिब केज इज मेड अप ऑफ 12 पेयर्ड ऑफ रिब बोन्स, जो कि सिमेट्रिकली एक दूसरे से पेयर्ड है राइट और लेफ्ट साइड पे। ये जो 12 हैं उनमें से 10 जो हैं वो पीछे से अच्छा देखो, ये जो रिब्स है ना, केज कैसे बना रही है, लोअर इन द बैक साइड इट अटैच विद द वर्टिब्रल कॉलम, एंड फ्रंट से ये स्टर्नम से अटैच है जिसे आप कहते हैं चेस्ट बोन। अच्छा, अब मजे की बात ये कि 10 बोन अटैच है, 2 बोन अटैच नहीं है। 2 बोन पीछे से वर्टिब्रल कॉलम से तो अटैच है, लेकिन आगे से ये स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है। तो जब ये आगे से स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है तो होगा क्या कि ये इसे इन 2 बोन्स को आप कहेंगे फ्लोटिंग बोन्स।
11 और 12 बोन को आप कहते हैं फ्लोटिंग बोन, FLOATING। इसको फ्लोटिंग बोन क्यों कहेंगे? क्योंकि ये पीछे से तो अटैच है लेकिन आगे से ये स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है। तो देन स्टर्नम, जिसे आप ब्रेस्ट बोन या चेस्ट बोन भी कहते हैं, इट इज अ लॉन्ग फ्लैट बोन। आपने देखा है लॉन्ग है, फ्लैट है इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द चेस्ट। इट कनेक्ट टू द रिब्स बाय कार्टिलेज एंड फॉर्म द फ्रंट ऑफ द रिब केज। अब आप ये देखें कि ये जो आपको ब्लू कलर का नजर आ रहा है, दैट इज अ कार्टिलेज। तो ये कार्टिलेज के थ्रू स्टर्नम के साथ रिब्स अटैच होती हैं। मेन फंक्शन क्या है स्टर्नम का? हार्ट, लंग्स और मेजर ब्लड वेसल्स को इंजरी होने से बचाना, इंजर्ड ना हो जाए, क्योंकि फ्रंट साइड पे मौजूद है और सारे वाइटल ऑर्गन आपके सामने ही है, तो स्टर्नम प्रोटेक्शन करती है। देख लीजिए भाई, अगेन ब्लू वन इज द कार्टिलेज, देन द स्टर्नम एंड रिब्स। द लास्ट वन इज कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। Then moving toward the appendicular skeleton. Appendicular skeleton consists of pectoral girdle and pelvic girdle. The upper limb is called pectoral girdle and the lower limb is called pelvic girdle. ये upper limb है pectoral and lower limb appendicular इसके। appendicular जो है ऊपर का pectoral, नीचे का pelvic। Then pectoral girdle दो बोन से मिलके बनता है। एक आपके पास कहलाती है clavicle एंड द दूसरी आपके पास कहलाती है फ्लैट बोन, जिसे आप कहते हैं स्कैप्यूला। सो पेक्टोरल गर्डल, जिसे शोल्डर गर्डल कहते हैं, ये क्लेविकल और स्कैप्यूला से मिलके बनती है। एक साइड पे एक एक होती है, यानी कि टोटल 2 क्लेविकल है आपकी बॉडी में और 2 स्कैप्यूला है। देन पेक्टोरल गर्डल के बाद जो बोन्स अटैच हैं, ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना। रेडियस होती है आपकी थंब रीजन की साइड और अल्ना होती है जो आपकी छोटी उंगली है। देन कार्पल, देन मेटाकार्पल, देन फेलेंजिस। अल्ना एक, रेडियस एक, एक साइड की बात हो रही है, दोनों साइड में आप डबल कर लेंगे। कार्पल 8, मेटाकार्पल 5 एंड फेलेंजिस 14। देन पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल जो है वो 2 इनोमिनेट बोन से मिलकर बनता है, यानी कि हिप बोन की बात कर रहे हैं। एंड इट कंसिस्ट ऑफ, जाहिर सी बात है पेल्विक गर्डल आपके 2 साइड्स हैं, तो 2 आपके पास मौजूद है जिसे आप कहते हैं इनोमिनेट बोन। क्या कहेंगे? इनोमिनेट बोन। तो वो 2 इनोमिनेट एक इनोमिनेट बोन 3 से मिलके बनती है, इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। ये भी आपसे एमसीक्यूज में या शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है। और सैक्रम से मिलके बनती है, ठीक है। इलियम, इस्चियम, प्यूबिस और सैक्रम से मिलके बनती है। ये जब तक आप डायग्राम नहीं देखेंगे आपको क्लियर नहीं होगा। बीच वाली कहलाती है आपके पास सैक्रम। आप देखिए ये 2 इलियम है, 2 इस्चियम है एंड 2 प्यूबिस है। इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस ये बन मिलके एक इनोमिनेट बोन बना रही है। तो वी हैव 2 इनोमिनेट बोन बट 1 सैक्रम। सैक्रम एक है, इलियम 2 है, प्यूबिस 2 है, इस्चियम 2 है। देन द लोअर लिम्ब कंसिस्ट ऑफ 30 बोन्स, फीमर, टिबिया, फिब्यूला, पटेला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजिस। अब मजे की बात यह है कि कार्पल जो थे वो 8 थे, टार्सल जो है वो 7 है। वो इसलिए क्योंकि आपके जो अपर लिम है उसमें पटेला मौजूद नहीं था, जिसे आप घुटना कहते हैं। तो एक जब यहाँ ऐड हो गया तो यहाँ से एक माइनस हो गया। तो जैसे कि आपके पास अपर लिम में 30 बोन्स थी, लोअर लिम में भी 30 बोन्स है एक साइड में, और 30 30 60। फीमर इज द लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। जो लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट इसे क्यों कहते हैं, अगर ये पेपर में रीजन पूछा जाए तो आप इसमें लिखेंगे कि स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरी बॉडी का जो वेट है वो बेयर कौन करता है, वो फीमर करती है। देन पटेला, टिबिया एंड फिब्यूला, टार्सल, मेटाटार्सल एंड देन फेलेंजिस। सो स्टूडेंट्स, ये था एक फटाफट जो है रिवीजन ऑफ द स्केलेटल सिस्टम। सो बोन्स जो 206 हैं हमने एक एक करके सारी देखी हैं, जो कि 70% कैल्शियम से मिलके बनी है। कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जो कि बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। उसके बाद हमने एक्सिल स्केलेटन के पार्ट पढ़े। स्कल, स्कल के 2 पार्ट्स हैं, क्रेनियम एंड फेशियल। देन हमने पढ़ा रिब्स। देन वी हैव आल्सो डिस्कस द बोन्स ऑफ क्रेनियम, द बोन ऑफ स्कल। देन वी हैव डिस्कस के रिब्स में 2 आपके पास मौजूद हैं, एक आपके पास कहलाती हैं फ्लोटिंग रिब्स और एक आपके पास अटैच रिब्स होती हैं। फ्लोटिंग लास्ट की 2 हैं। फिर फ्लोटिंग जो रिब्स जो है वो स्टर्नम के साथ जो ब्रेस्ट बोन है उससे अटैच है कार्टिलेज के थ्रू। देन हमारे पास
आ जाता है वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें 24 मूवेबल बोन अटैच है, एक सैक्रम एक कॉकेक्स। जो 24 है वो किस में कन्वर्ट है, वो किस में डिवाइड हुई हैं, सर्वाइकल, थोरैसिक एंड लुम्बर रीजन में। उसकी भी डिवीजन आपको पता है, नंबरिंग आपको मैंने बता दी है। देन हमारे पास एपेंडिकुलर स्केलेटन है, पेक्टोरल गर्डल, पेल्विक गर्डल, पेक्टोरल गर्डल, स्कैप्यूला, क्लेविकल, ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजेस। 30 बोन्स मौजूद है दोनों हाथों में, टोटल 60 हो जाएंगी। देन पेक्टोरल गर्डल जो कि इनोमिनेट बोन से मिलकर बना हुआ है, दो इनोमिनेट बोन है। इनोमिनेट बोन, कंप्लीट इनोमिनेट बोन तीन बोन से मिलकर बनती है, इलियम, इस्चम एंड प्यूबिस से। एक सैक्रम बीच में मौजूद है। देन फीमर, रेडियो, टिबिया एंड फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल, फेलेंजिस एंड पटेला। तो टार्सल यहाँ पे है 7, जबकि कार्पल आपके पास जो हाथ में थे वो थे 8। Okay, students. So, and we know that the what is the function of skeletal system? It provides support to the body. It provides protection to the body. The function is the blood cell production, storing the calcium. So these are all about the skeletal system. So, student, this is all for today. Thank you.